I started meeting people slowly and steady because I didn't have the money कि मैं बाहर जाके मिलूं. वो जाऊं कैसे जाऊंगा तो कॉफी पीऊंगा कॉफी के भी पैसे नहीं. So I remember that उस सीन में when I saw the scene तो मैं फ्रेम में था ही नहीं. So I went to the director. I said, sir, take okay. हाँ हाँ बहुत अच्छा था. तो that is the time I said, hell with it. मुझे नहीं करना. I think audition देने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए. A lot of actors out there. अगर आज भी लोग बुलाते हैं जाओ यार क्या हो गया उसमें. बिकॉज वो ये नहीं देखना चाह रहे कि आपको एक्टिंग आती है कि नहीं आती, वो ये देखना चाह रहे हैं आप इस रोल में फिट होते हो. हाय एवरीवन, दिस इज मनीष पॉल एंड यू आर वाचिंग मी ऑन peepingmoon.com. Hi guys, this is Ankita. You're tuned into peepingmoon.com and today we are in conversation. Let's talk with Gurpreet sir, or should I just introduce him as Manish Paul? Coming to basics, so I have to start from the beginning, Manish. It's not an overnight fame. It has been a hard work, a journey of spanning over decades is the word if I have to say. Almost 2 decades plus I should be counting it as. So yeah, I think 2002 is when I started. I did a show with Star Plus called Dr. Mopin Sunday Tango. So that was my first kind of appearance. और उसके बाद I think it's to 2022. The journey has been fantastic. I shifted to Mumbai in 2005 when I became an RJ first. From an RJ, started doing some television. I did a few fiction shows, which I honestly, no offenses, but I didn't enjoy. I said, no, yeah, this is not what I'm liking. Then I started hosting in 2009, and touchwood, there has been no looking back. People have really given me a lot of love. God has been really kind. Started doing films also, and yeah, today in 2022, doing a Dharma production with one of the biggest names in the industry. I think मेरे पास words नहीं है अपनी खुशी express करने के लिए. Manish, when you reflect back as an artist, Yeah. I would not just call you an actor because there are so many facets to your personality. Do you recall the time where the struggle was as difficult as it gets? Because in the glory of success, Yeah. we often don't touch upon the time which actually makes an artist an artist. Absolutely. I think nobody's journey is smooth. I think even today, Mr. Amitabh Bachchan, who's I think the biggest star in the industry has ever produced. I think till today he says कि नहीं, I still have to struggle. So I honestly, I don't call it a struggle. I call it a journey. I call it, it's been an inspiration. If I look back at a lot of things, I feel inspired कि हाँ यार, good यार, कुछ अच्छा किया life में. So yeah, there was a time in 2008 when I had no work, You, I think, voluntarily took off also, sort of. Yeah, you were not inspired by the work around you. Yeah, that's what. So I was doing fiction, so I was not enjoying, and I remember that one director, I was in a scene, so I was playing one of the small characters, but I told him मेरी बड़ी मुश्किल से lines लिखी हुई आती थी स्क्रिप्ट में, so I would just go through, there was no lines. Finally I had a line, I got excited with that only. So I went to the director, I said, sir मुझे करना क्या है? कहते कुछ नहीं करना यार, चुप करके खड़ा रहना बाजू में, क्या इतना एक लाइन है उसके पीछे. So I said okay. So I remember that उस scene में when I saw the scene तो मैं frame में था ही नहीं. So I went to the director, I said, sir, take okay. हाँ हाँ बहुत अच्छा था. So that is the time I said, hell with it, मुझे नहीं करना. If you don't have respect for me, it's okay. I'm not dying to work like that. So that was the day I said, I don't want to do it. I was sitting at home for 1 year. I just took a call. I said, नहीं यार मुझे ये नहीं करना. मैं respectful काम करने आया हूँ. And I'll take it easy. So that was the year. Then after that, I think I got a call from ZTV, and it was a difficult time. I had no money to even pay the rent. Was typical उतना ही आ रहा था कि I could just manage my rent somehow, and my wife was earning that time. She was a teacher, so we were just somehow managing the house. And then I got a call from ZTV, and they said, Manish, एक show है. I said मैं करूँगा. So they said सुन तो लो. मैंने कहा नहीं मैं कर रहा हूँ. You're paying me ना, मैं करूँगा. So I remember I did that show. It was called घर घर में. उसके लिए भी a lot of friends made a lot of fun of me. कि यार what show are you doing, man? You're going to everybody's house. कहाँ घर घर में जाके you're playing games. But honestly, I really had a good time. It was a great learning experience. The show was, I signed the show for 3 months. It went on for 16 months. So I remember that the show sign करने की बड़ी amazing कहानी थी. I remember I was shifting the house because मैं उस घर का rent भारी पड़ रहा था. I said we'll shift the house. So I was in a tempo with the workers, and मैं वो नए घर में भी shift हो रहा था. I was all dirty, track pant, टोपी डाल के, and suddenly I get a call. ये जो call आया था कि ऐसे ऐसे हैं, हम लोग
ओबरॉय मॉल में बैठे हैं, मीटिंग है, तुम आ सकते हो? आई सेड मैं अभी आ रहा हूँ. सो आई रिमेंबर आई टोल्ड द टेम्पो गाइज, वो घर के नीचे, मैंने कहा यार आधा घंटा वेट कर, मैं आ रहा हूँ. सो आई इनफैक्ट मेरे बालों में तेल लगा हुआ था, मैं गंदा बना हुआ था, तो जो वर्कर था मैंने उसी की टोपी ली थी. मैंने कहा यार टोपी दे दे 5 मिनट के लिए. आई जस्ट वोर हिज कैप, कपड़े झाड़े, जूते पहने हुए थे, ऐसे भाग. तो आई टुक अ रिक्शा, आई स्ट्रेट अवे वेंट टू ओबरॉय मॉल बिकॉज आई वाज सो डेस्परेट फॉर वर्क, बिकॉज आई नीडेड वर्क. एंड मैं गया और उन्होंने कहा ऐसे ऐसे मनीष शो है. मैंने कहा मैं कर रहा हूँ सर. मैं कहते हैं जो पैसे वैसे, मैंने कहा सर कुछ तो दे रहे होगे ना, इस टाइम तो आई हैव नथिंग. सो आई रिमेंबर वो शो साइन किया था, एंड बस वो शो में मैंने इतना मज़ा किया. यू नो इट वाजंट जस्ट अबाउट द मनी, बट आई वाज आउट देयर एंड वर्किंग. सो आई वाज सो हैप्पी कि मैं घर के बाहर हूँ, मैं काम कर रहा हूँ यार. सो वो शो से बस धीरे धीरे यू नो थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग. दिस सॉ मी देयर. The show went on for 16 months. Then I started hosting award nights with Z. Then Z gave me Saregama, then DID Little Masters. Then happened, then Jhalak, and then Touchwood, the ball was rolling. Manish, was there ever any point, because you married your childhood sweetheart, Yeah. but it also becomes a little difficult after a point where we are talking about again 15 years back, Yeah. and we were still in that, not exactly, but we were still also got on a mindset that a husband has to earn and Yeah. take care of the family, Hmm. but your wife stood there with you. Was there ever a point where even you thought that, am I doing it right, switch kar दूं, हो नहीं रहा अगर, or should I like move to some other job? No, there was a difficult time here when the wife was earning and I was sitting at home. I had no work. So things were not falling in place. So I remember one day I broke down. I said, "यार नहीं हो रहा, क्या करेंगे?" But she really played my strength. She said, "Don't worry, you do what you like." And yeah, I started meeting people slowly and steady because I didn't have the money कि मैं बाहर जाके मिलूं. वो जाऊं कैसे? जाऊंगा तो कॉफी पीऊंगा, कॉफी के भी पैसे नहीं है. So somehow, you know, I just held. I said, "Don't worry, it's okay." Because I think I had a dream when I came here. I wanted to give good entertainment. It wasn't just about the money, yaar. Because अगर पैसे ही कमाने होते, I had other options. You could have easily stuck to the GEC shows, Yeah, which pay you. so yeah, they were paying Yeah. decent, yeah. But I said, no, yeah, I'm not here to earn a per day. You know, it's not about the per day. It's about the entertainment I'm creating. It's about going home with a satisfactory smile on my face. Ki, wow, man, आज जो करके आया ना, people will love it and they'll remember it for years to come. You know, so that was there. So yeah, difficult हुआ कि क्या करूँगा यार now. बट थैंकफुली वो जो जी का शो है ना, बस वो मैं अपनी बॉटल नेक हिट कर चुका था. मुझे था बस अब नहीं होगा. एंड इट क्लिक्ड. आई सेड वाओ. एंड देन इट स्टार्टेड रोलिंग स्लोली एंड स्टेडी. यू नो, वर्क स्टार्टेड हैपनिंग. Yeah, and after that there was there was a lot of work. Suddenly a lot of channels noticed कि हाँ यार ये कुछ तो करता है. You know, a lot of actors started noticing कि ये लड़का जब आता है so कुछ तो करता है. बिकॉज ऑनेस्टली आई हैड नथिंग टू लूज. सो आई वाज जस्ट गोइंग ऑन मैन. मेरे को जो मन में आता था मैं बोलता था. थैंकफुली बुरा नहीं बोलता बुरा था. नहीं बोलता. किसी की बेइज्जती नहीं करता था. यू नो, अ लॉट ऑफ एक्टर्स स्टार्टेड टेकिंग अ थिंग कि यार तू अच्छा कर रहा है. Clean You know, entertainment, as I call it. Clean entertainment. Because I feel that at the end of the day, anybody who's sitting in the audience as an actor, मेरा सबसे पहला दिमाग में आता है इसके घर वाले देख रहे होंगे. यू नो, सो उसकी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए यार. उसकी माँ देख रही होगी. हीरो है, अपनी माँ के लिए हर बच्चा हीरो होता है. सो आई थॉट वो चीज़ जो है ना, दैट शुड बी हाईलाइटेड. यू नो, ठीक है मैं मस्ती करता हूँ, मजाक करता हूँ, 4 अपनी टांग खींचता हूँ, 2 उनकी टांग खींचता हूँ, बट एट द एंड आई ग्लोरीफाई एवरीथिंग कि नहीं यार हम लोग सब फैमिली हैं, मस्ती मजाक करते हैं. बट द काइंड ऑफ वर्क एवरीबडी इज डूइंग, द काइंड ऑफ हार्ड वर्क एवरीबडी इज पुटिंग इन, वो कहीं वेस्ट नहीं होना चाहिए कि भाई मैं तो मजाक कर रहा हूँ लेकिन मेरा मजाक उस पर भारी पड़ रहा है, उसकी फैमिली पे भारी पड़ रहा है. इट शुड नॉट हैपन. सो आई ऑलवेज टेक केयर ऑफ दैट. Manish, when you also transition to the phase of hosting and I would say RJing and VJing से आगे बढ़कर लाइव होस्टिंग बहुत एक ऐसे स्टेज पे था जब आप इसमें आए हो, तब वी वर गोइंग थ्रू दिस स्टॉर्मी फेज की किसी भी तरीके के कोई भी जोक्स कोई भी, एंड इवन द बिगर द नेम वाज आल्सो cracking jokes which didn't go down well with many people, and we all have heard the stories of what went down, not repeating that. But कभी ऐसा हुआ that, or maybe who was that person who actually first came up to you and told you that Manish, this is meant for you? Because today if I see, hosting is such a tailor-made profile for you that it was difficult for me. I won't lie, when I saw you in JJJ trailer, I was like, kitna fit hoga? Because for me, Manish as a hostess
Yeah. near perfect. Hmm. So how as an actor, and that also because you came after a while Hmm. in a film, how will you transition? But who was that one person who would have come up to you, maybe in the industry or anyone who told you that, nahi Manish, this hosting is something which is just the perfect? Honestly, you know, a lot of people. I can name Akshay sir. I remember Akshay sir एक award night में था. We did a lot of मस्ती. So उन्होंने मस्ती मजाक में मेरी बहुत डांटा मुझे स्टेज पे. So I got scared. I said, अरे ये क्या हो रहा है? But you know, then I started creating a timing with him. I remember him leaving the award night. इधर आ, कहाँ से है तू? तब मैं नया नया आया था. मैंने सर दिल्ली से हूँ. अच्छा करता है, बढ़िया है. So he went. I remember Shahrukh sir, one of the award nights, you know, I was having masti with Rani Mukherjee ma'am. So he told me, he looked at me, he said, अरे मैंने तेरा कल एक award night देखा था. मैंने कहा जी sir. अच्छा कर रहा है, very nice. You do a good job. मैं thank you. So slowly and steady, you know, people started becoming comfortable. I remember that Katrina Kaif, I remember that she came for an award night and her manager walked up to me saying that Katrina is very happy you are hosting the award. I said, why? She said, you never make fun of her. मैंने कहा, I'm not here to make fun of her. I'm here to make her feel comfortable and And have a good entertain. time. So she said the best thing she felt, because that time Katrina की हिंदी was a big thing कि Of course. आप हिंदी में 4 लाइन बोल के था. अरे नहीं आती उसको हिंदी तो क्या हो गया यार. So बार बार वही चीज आ रही थी. I was the one who never asked her to talk in Hindi. I said, you talk in whatever language, man. You know, you're beautiful. People like you, what you do. People love when you dance. People love when you act. So let's glorify that rather than आपको हिंदी नहीं आती. Why? एक बंदे की एक कमजोरी पे ही खेलते रहो, वो नहीं है ना. उसकी 5 स्ट्रेंथ है, उस पे खेलते हैं. Because I feel it's not about just an actor. It's about an actor of our film industry. It is one family. अगर हम एक दूसरे को ग्लोरीफाई नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा. यू नो, आई ऑलवेज बिलीव इन दैट. यू नो, इट इज़ वन फैमिली. हम लोग आपस में मस्ती मजाक करेंगे, लेकिन हम किसी को अपना मजाक नहीं उड़ाने देंगे. मैं आपकी टांग खींचूंगा, बट मैं आई मेक श्योर कि कोई और आपकी टांग नहीं खींचेगा. यू नो, सो ये चीज़ें स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ, यू नो, विच आई नेवर थॉट कि वो इतना टचवुड अच्छा रिजल्ट देंगी मुझे बाद में. व्हेन एक्टर स्टार्टेड कॉलिंग अवार्ड नाइट्स में, आने से पहले मुझे कॉल आ रहे हैं सबके. अच्छा तू है, अच्छा सुन इस चीज़ का ध्यान रख लियो, अच्छा तू है, अच्छा सुन. दे माइट जस्ट टेल यू टू से दिस. मैंने सर आपको ज़रूरत ही नहीं बोलने की. आई नो विच आर द टची टॉपिक्स, यू नो आई नेवर टच इट. सो आफ्टर दैट वो भी बंद हो गया कि पीपल न्यू. आ रहा हूँ, मनीष. मैसेज आता था, मनीष लेट्स हैव गुड टाइम, मनीष मजे करेंगे. सो मैं अवार्ड नाइट में मेरा फोन हमेशा मेरे साथ होता है, बिकॉज एवरीबडी इज मैसेजिंग. सो यू नो, इट्स अ गुड फीलिंग कि एवरीबडी फील्स कि यार अपना ही बंदा खड़ा है, कोई ऐसी टेंशन नहीं है. सो yeah, God is kind. This question comes up to me because IFA, Hmm. Abhi, and I was there, and Salman was like, "You're our best host." And I know because Salman himself is also a very generous host, Yeah. and he's hosted enough times. Just Yeah. that we don't put it across that Salman is Yeah. hosting. For us, Yeah. Salman sir is always a performer. But how you take that, considering that I know in what circumstances and in what space he said. I was there, so I can ask you that. Yeah. How does it feel on the stage, live in front of God knows billions of audience, where somebody walks up to you and tells you that he's probably the best one I have worked with? Because that's a validation of those 20 years, which all the Yeah. blood, sweat, which as I've been speaking, nobody sees, but it's been there. यार आई नो. सो वही होता है ना कि लॉट ऑफ पीपल सी अ डक स्विमिंग, कहते हैं क्या स्मूथ जा रही है ना, कितने मजे में जा रही है. ब्रो कितनी तेज पैर चला रही होती, किसी किसी को को नहीं नहीं दिखता. पता. यू नो, सो इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. आई विल नॉट टेक इट अवे फ्रॉम दैट. इट्स बिन अ लॉट ऑफ रिजेक्शंस, लॉट ऑफ पीपल हु डिस्करेज्ड. लॉट ऑफ पीपल सेड कुछ नहीं होना, तेरा फेस नहीं है, तेरे ये नहीं है, तू यही करेगा, तू वही करेगा. सो इट्स ओके. I have no hard feelings towards anybody. I remember everybody. I still meet them with a smile, and I will always meet them with a smile, because मैं hard feelings रखने वाला मैं हूँ नहीं. पर हाँ, मैं याद definitely रखता हूँ किसने मुझे क्या कहा. और अब मैं I think mentally उस stage पे आ गया हूँ जहाँ मैं हंसता हूँ. मुझे हंसी आती है, मुझे मज़ा आता है, मुझे याद करता हूँ तो मज़ा आता है. मैं याद करके ये नहीं कहता I'll never invite them to my house. They're still most welcome. पंजाबी आदमी, मेरा घर हर एक के लिए खुला है, जिसको आना आओ, बैठ के चिल मारेंगे, खाना खाएंगे. You know, so I'm that guy. So, but अच्छा लगता है when people like Salman sir, you know, they acknowledge कि नहीं यार, you are the best host, बहुत अच्छा काम करते हो. I think big thanks to him, because he's given me one of the biggest international world tour With ever someone. created in our industry. I think we started with 5 or 7 shows. Today we have done 27 shows across the world, and we are gearing up for more. I think the kind of space he's given me there, you know, he was the one, he said, you're not just a host, perform karo.
हमारी इंडस्ट्री में एक कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, होस्ट कभी परफॉर्म नहीं करते. सो आई थिंक सलमान सर वॉज द फर्स्ट मैन हु सेड, मैं बैठा हुआ था उनके फार्म पे एंड एक अवार्ड नाइट थी, तो मैं उनसे, मेरा थोड़ा आर्ग्यूमेंट चला था, मैंने यार मैं ऐसे हूँ, तो मैंने फ़ोन रखा तो कहते क्या हो गया. मैंने कहा सर वो टिपिकल है ना कि होस्ट हो तो पीछे से बस साइड विंग से चल के आ जाओ. मैंने कहा मुझे नहीं साइड से चल के आना, मैं ऊपर से लटक के आऊँगा, यहाँ से आऊँगा, वहाँ से आऊँगा, 4 डांसर दे दो. मैंने सर 4 डांसर नहीं दे रहे. मैंने कहा मैं अपने गाने पे डांस करके आ जाऊँगा. तो ही वॉज लुकिंग एट मी, मुदस्सर हमारा द बैंक टूर स्टार्ट हो रहा है, हाँ मनीष परफॉर्म करेगा, गिव हिम 40 डांसर्स. आई सेड व्हाट, गिव हिम 40 डांसर्स, ओके, और वो जो गाना है वो भी तुम गाओगे. सो द बैंक एंथम इज इन माई वॉइस, आई हैव संग इट, मुदस्सर हैज कोरियोग्राफ्ड एंड 40 डांसर्स यार, तो मतलब क्या होता है वो, तो मज़ा आ गया. सो आई बिग थैंक्स टू हिम, बिकॉज इस तरह के लोग चाहिए यार जो आपको आपका मोल्ड तोड़ने दे. एक मोल्ड होता है ना कि बस इसी में रहने दो उसको, वो नहीं करते वो. उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि आप बस होस्टिंग करो, मैं ओपन करता हूँ, मैं होस्टिंग कर रहा हूँ. एंड में ही मेड श्योर कि आई एम डांसिंग विद एवरीबडी, विद ऑल द स्टार्स वी कम टुगेदर फॉर द फिनाले. ही सेड नहीं, यू आर नॉट जस्ट अ होस्ट यार, तुम हमारे एक्टर भी हो, तुम होस्ट भी हो, तुम सिंगर भी हो, सब करो. सो दैट फील्स गुड व्हेन समबडी इज सो एनकरेजिंग. सो वो अच्छी बातें लगती हैं. एंड दैट्स वाई मैं हर एक को बोलता हूँ, मैं कोई फिल्म करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, मैंने कहा देखो भाई सारी डेट्स आपकी, बट एक फ़ोन कॉल आता है जहाँ मैं सारी डेट्स कैंसिल करता हूँ, वो सलमान सर. सो जुग जुग में भी हुआ था, वी वर शूटिंग एंड आई इमीडिएटली गेट अ कॉल, हमारा एक शो प्लान हो गया था. सो मैंने कहा हाँ जी सर वो शो है, ओके डन. तो मैंने फ़ोन रखा, मैंने राज सर को कहा, मैंने कहा सर वो डेट अपनी थी, आई एम सॉरी कैंसिल करनी पड़ेगी. ही लुक्ड एट मी, अच्छा. मैंने सर भाईजान के लिए मेरे को डेट देनी ही पड़ती है, इट्स ऑलवेज, एंड इट्स नॉट डर नहीं है उनका, मुझे प्यार है उनसे, मुझे उनकी रिस्पेक्ट है. एंड थैंकफुली सब ये बात अंडरस्टैंड करते हैं कि एक वो रिस्पेक्ट वाला एंगल है. एंड एवरीबडी एक्नॉलेजेस एंड दे गो बाय इट कि चल यार कोई बात नहीं. सो वो ऑलवेज रहेगा. किसने सबसे पहले व्हेन वी टॉक अबाउट दिस स्पेस ऑफ योर्स कि आप उसमें से निकले और अब आप यहाँ पर हैं, आज जुग जुग हैज बिकम सच अ बिग phenomena. Everyone has been talking about it. What I also liked in Jug Jug, I have to say it, to see you in so many promotions, because normally हम अपने promotions को बहुत limit कर देते हैं कि we only stick to the actor and the actress of a particular film. And here I was seeing you almost every space where it could be a possibility. How do you think that a film like JJJ can be a game changer for where this also helps you to break the mold? This film is also, I can categorize that this is 20 years later a new Manish Paul. Absolutely. I think क्या होता है ना, generally for an actor it's very important that whatever role has been given to you, the producers, the director, they uplift the role. They make sure that you're important in a film. It's not about just doing your role and going back. They made sure, they knew what I could contribute. They made sure to use that. There are people, they know that you can contribute, but वो नहीं लेके जाते. There are heroes, they don't take you with you. But that way, thankfully, Varun, brilliant. He was never insecure. He was never ki, I will go alone. He's never done that. Big thanks to him. He made sure, he called up, पाजी फलानी प्रमोशन है, आपने आना है. मैंने कहा हाँ मैं, तू बोल यार तेरे लिए हूँ मैं, हाँ डन डन पाजी आप आ रहे हो. Karan sir called up, अच्छा promotions are there, you have to make sure you're there. So it was never like कि it is just a Varun Dhawan film or just an Anil Kapoor film or just Neetu Ji's film or just Kiara's film. It was everyone's film. That is the best part. It is a great thing that on the set, it was never, Varun never made sure कि मेरा around ही revolve हो. He would make sure that everybody is looking good in the film. Everybody is there even for the when your promotion. jokes are there on the screen, as I can say, it was never like that Varun was given or an Anil sir was given an extra time. What I mean to say is, like, when you see two people exchanging fun takes on screen, it was an equal banter. Like that Mandir scene of yours. That was again like, this is such a solid equal scene that all you have to do is just with eyes and say like, नहीं यार मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने देखे हैं ऐसे लोग जो आपका सीन होता है लेकिन वो अपना क्लोजअप लगवा लेते हैं, वो आपकी लाइन आ रही होती है लेकिन आपका फेस नहीं डालते. बट यहाँ पे दे मेड श्योर यार, छोटी छोटी चीज़ें थी जो कई बार मैंने ऐड भी करी. दे मेड श्योर, इनफैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल कॉल्ड मी अप, अच्छा तूने किया तो था, आया कितना फिल्म के अंदर, कि एडिट तो नहीं हो गया. मैंने कहा यू वोंट इमेजिन, मैंने अगर पीछे खड़े हुए यूं भी किया ना तो उन्होंने वो भी रखा है. दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस सेटअप आई वर्कड इन.
they were all, that is what I say, everybody was so secured. किसी को ये नहीं था यार उसकी लाइन अच्छी जा रही है, इसको तालियां मिल जाएंगी, इसका सीन काट दो. ऐसा भी होता है. We all know. You know, obviously nobody will name the actors and why should we, हम किसी की बेइज्जती नहीं करने हैं, but हाँ होता है. That's a structural fault. We are calling it. But इस फिल्म के अंदर मैं क्लियरली बोल सकता हूँ यार, जो जो मैंने किया सब रखा गया. और आई थिंक वो एक जो हैप्पी और पॉजिटिव वाइब क्रिएट की गई, वही चीज है जो ऑडियंस तक पहुंच रही है. एंड दैट्स व्हाई ऑडियंस इज लविंग अस सो मच. Manish, what after JJJ? Because sometimes when the success is so huge, the pressure, release, मतलब applause के बाद फिर एक वो दिन और एक रात आती कि अच्छा अब मैं ऐसा क्या करूं कि ये मोमेंटम, ये जो मेरा फेथ फैंस ने मुझ में रखा है, मैं इसको ब्रेक नहीं कर सकता. एंड आपके केस में तो बहुत सॉलिड एक फैन फॉलोइंग रही है जिन्होंने आपको पहले एंकरिंग को बहुत सराहा है. JJJ has, I can open reviews and show you. I don't think I have to say it again that you have got all the love coming from all the quarters. But does it scare you कहीं पे अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगा कि मैं ये मोमेंटम ब्रेक मत करूँ? नहीं यार, मैं डरता नहीं. आई टेल यू व्हाई, बिकॉज JJJ भी मैंने प्लान नहीं करी थी. इट वाज प्लान्ड इन माय डेस्टिनी, यू नो. सो आई बिलीव इन डेस्टिनी. व्हाटएवर हैज टू हैपन विल हैपन. सो आई डिडंट प्लान कि अब फलानी डेट को आई साइन धर्मा प्रोडक्शन एंड देन द फिल्म विल डू गुड एंड द नेक्स्ट डे आई विल बी अ स्टार. Nothing like that. I still don't feel like a star. I'm a normal guy. I'm still one actor who goes to different producers and they make me work for them. You know, so still मैं उस स्कूल का बंदा हूँ कि मैं कहूँगा कि करण जौहर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन for the film he was my boss man. You know, Raj Mehta was my boss. He made sure कि क्या होना है. You know, I still believe in that school. मैं कभी भी सेट पे ऐसा नहीं जाता कि मैं सेट पे आ गया हूँ fine. और नहीं यार, वो नहीं है. And you're very open with the fact that even if tomorrow somebody calls you for an audition. I auditioned for Jug Jug Ji also. I know that. Yeah. You because people, Raj Mehta was a little कि पाजी एक सीन है, अगर आप करना चाहो. मैंने कहा एक सीन सर ऑडिशन है. नहीं मतलब यू डोंट टेक इट एज एन ऑडिशन. मैंने कहा नो, आई वांट टू टेक इट एज एन ऑडिशन बिकॉज आई वांट पीपल टू नो कि हम लोग ऑडिशन करते हैं. वी डू इट इन द वेस्ट, व्हाई कांट वी डू इट हियर? And there is no shame. एब्सोल्युटली नॉट यार, क्योंकि कई बार ऑडिशन करते हुए आप खुद भी समझते हो कि आप ये कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. सो एज एन एक्टर यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट कि कई बार क्या होता है, डायरेक्टर को तो लग रहा है लेकिन आपको कमी लग रही है यार, तो आप डायरेक्टर, इट्स अ टाइमिंग ना. इट्स नॉट अबाउट कोई ईगो हैसल्स थोड़ी चल रहे हैं यहाँ पे कोई. And also in your part, comedy is probably the most toughest genre which nobody understands. It's a matter of quick responses. Absolutely. And you know, when I was watching it with the audience, the happiest point was when every joke was landing properly. The way it should is supposed to land. Yeah, because कई बार क्या होता है, पहले फिल्म देख रहे हो, मैं स्क्रीन नहीं देख रहा था, मैं ऑडियंस देख रहा था, ये हंस रहे हैं कि नहीं, इनको समझ आ रहा है कि नहीं. एंड जब वो लैंड हो रहा था, वी वर लाइक यस, हमने जो प्लान किया था वो हुआ. यू नो, दैट इज अ हैप्पी मोमेंट. बट आई थिंक ऑडिशन देने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए. लॉट ऑफ एक्टर्स आउट देयर, अगर आज भी लोग बुलाते हैं, जाओ यार, क्या हो गया उसमें. बिकॉज वो ये नहीं देखना चाह रहे कि आपको एक्टिंग आती है कि नहीं आती, वो ये देखना चाह रहे हैं आप इस रोल में फिट होते हो. Exactly. ये कैरेक्टर आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर वो कैरेक्टर के अंदर वो ऐड कर सकते हैं. इनफैक्ट द ऑडिशन वर्कड फॉर मी. व्हाई? मेरे सीन्स थोड़े कम थे फिल्म में जब मैंने फिल्म ज्वाइन करी है. इनफैक्ट उस ऑडिशन के बाद मेरे सीन बढ़ाए गए. एंड लेट मी टेल एवरीबडी आउट देयर जो ऑडिशन नहीं करते, कर लो, फायदा होता है. सो मैं जब गया था, मेरे बहुत कम सीन थे. इट वॉज काइंड ऑफ अ गेस्ट अपीयरेंस. जब ये हुआ, एवरीबडी सैट डाउन इंक्लूडिंग वरुण. ही सेड नहीं यार, पाजी शुड बी मोर इन द फिल्म. यू नो, सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस सेटअप. जो मुझे इतनी खुशी हुई ना, मैंने यार मजा आ गया भाई, दिल जीत लिया तुम लोगों ने. यू नो, वो चीज़ अच्छी लगी मुझे. क्लाइमैक्स में कुछ सीन्स थे, या मेरा ऑन द स्पॉट बहुत कुछ एडिशंस होते हैं. सो वी वर ऑल सिटिंग फॉर रिहर्सल्स एंड मैं कुछ इनपुट देता कि ये कर ले, करो, ये करें, बिल्कुल करो. वरुण वॉज लाइक, पाजी आप खुल के खेलो, आपने पीछे नहीं हटना, आप आगे बढ़ के खेलो, जहाँ आपको लग रहा है यू कैन टेक ओवर, प्लीज टेक ओवर. यू नो, सो वो एक टीम वर्क जो था ना, वो ब्यूटी थी इस फिल्म की यार. बहुत मजा आया. Rishabh, I have to like wind up and ask you, 20 years if you look by, कोई regret है? नहीं, कोई रिग्रेट नहीं है. मैं कुछ चेंज करना है? कुछ भी चेंज नहीं करना. मुझे मेरी हार भी जो है मैं उनको गले लगाता हूँ. मेरी जहाँ मैं जीता हूँ उसको भी गले लगाता हूँ. जहाँ मेरी इंसल्ट्स हुई हैं मैं उसको भी गले लगाता हूँ. जहाँ मेरी तारीफ हुई है उसको भी गले लगाता हूँ. बिकॉज आई फील एक जर्नी में अप्स एंड डाउन सब है. एंड आई कीप टेलिंग एवरीबडी, एम्ब्रेस एवरी मोमेंट. यू नो, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है.
मेरी कई ऑडिशंस ऐसे भी हैं जहाँ कहा तुम तो खानदानी नहीं लगते हो चेहरे से। Kidding Can you me? imagine? ये क्या मैं एक होता है? ऑडिशन में गया था, मुझे कहा नहीं आप ना रोल फिट नहीं करे। मैंने कहा क्यों? नहीं आपका चेहरा खानदानी नहीं है। मैंने कहा वाओ मैन आई लव यू। आई रिमेम्बर मैं उस ऑडिशन से भी बाहर हंस हंस के पागल होते हुए निकला था। I'm sorry. एंड आई कॉल्ड माय फादर अप। मैंने पापा यार क्या करते हो यार? कहते क्या हुआ? मैंने ऑडिशन फेल हो गया हूँ मैं। कहते हो कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। वो कह रहे हैं खानदानी फेस नहीं है, आप करते क्या हो यार? मुझे ढंग से तो पैदा कर। सो यू नो हमने उसको भी ह्यूमर में ले लिया। तो मुझे लगता है यार वो रिजेक्शन जो होते हैं ना, एंड फॉर एनी एक्टर वी फेल every day we fail And and every we have to failure get is a up. test. Every day we fail and we have to get up. So it's all about, you know, we obviously you fall down, but the beauty is in getting up. You know, गिरता तो हर कोई है यार, और रोज गिरते हैं. Not just actors, everybody falls down यार. But it is about getting up and keep moving forward. That is the most important thing, and that's the most beautiful thing. अगर आप उसको beautifully लोगे ना, क्या बात है यार. मतलब लाइफ की, मतलब मैं तो रोज ऊपर थैंक यू बोलता हूँ कि आपने हराया भी तो जीतना भी सिखाया, वो जरूरी है. मनीष एक बात बताओ, ये बहुत एक इनसाइडर सीक्रेट पूछ रही हूँ. मैं कितने टाइम से आपको, मैं कॉन्शियसली इफ आई एम नॉट लाई, मैं आपको लास्ट 3-4 सालों से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ. I haven't seen you in controversies ever. Yeah. What doesn't make you a controversy child? Because when you're popular, it's inevitable something or the other gets attached to your name. But I wanted to ask you, considering you are almost everywhere and it's very difficult, it's ये वो, but मनीष पॉल कंट्रोवर्सी से कोसों दूर कैसे रह लेते हैं? क्योंकि मैं खुश रहता हूँ और मैं सबको खुश रखना चाहता हूँ. और मैं बार बार बोलता हूँ, यू नो, हम लोग कई बार वी स्टार्ट टेकिंग आवर फेम टू सीरियसली. डोंट टेक इट दैट सीरियसली. यू नो, टेक योर ह्यूमैनिटी सीरियसली. टेक योर अपब्रिंगिंग सीरियसली. इसको सीरियसली लो कि वी हैव टू मेक श्योर दैट वंस यू वॉक इन टू अ रूम पीपल आर हैप्पी, एंड वंस यू वॉक आउट दे आर टॉकिंग गुड अबाउट यू. वो बहुत ज़रूरी है. सो आई ऑलवेज बिलीव इन दैट. ठीक है, कई बार कुछ लोग नाराज़ भी होते हैं, बट एक बड़ा खूबसूरत शब्द है सॉरी. वो बोल देना चाहिए और बोल के आगे बढ़ जाना चाहिए. कुछ छोटा नहीं You know, होता. कोई छोटा नहीं होता. माफ़ी मांगने से तो आप बड़े बनते हो, आप छोटे नहीं होते हो. सो आई थिंक, मुझे लगता है, पता नहीं यार, एंड स्पेशली आफ्टर कोविड, आई थिंक अगर अब हम रियलाइज़ नहीं किए, पता नहीं किसके पास कितना टाइम है. तो जो टाइम है उसको और ब्यूटीफुल बनाओ. रिलेशंस बना के रखो. रिलेशंस खराब होते हैं तो कॉल द पीपल अप. कोई बात नहीं. मैं यहाँ पे इंटरजेक्ट करूंगी क्योंकि हाँ. मनीष ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज कोविड के आसपास तो नहीं, मतलब उसी की पेरिफेरी में शुरू की थी, मनीष पॉल पॉडकास्ट. हाँ. मनीष, आपने इतने टूटे हुए रिश्ते जोड़े हैं, आपको आइडिया है? यार आई एम नहीं, नॉट गोइंग टू नेम एनीवन, बट आपने बहुत टूटे हुए रिश्ते भी जोड़े और आपने ऐसी ऐसी लोगों की लाइफ की बातें उन्हें इनकरेज किया सामने रखने को, जो आई विल नॉट कॉल देम सॉफ्ट स्टोरीज, बट इट्स, आई वुड से इट्स अ गिफ्ट ऑफ the interviewer in you Yeah. who could help them tell out the stories which could actually turn out to be inspiring for so many people. कितना कुछ एक आर्टिस्ट अपनी लाइफ में अपने तक रखता है. यार मेरा इंटेंशन जो था ना पॉडकास्ट का, वो ये था कि मैं अपनी माँ को भी बोलता हूँ. हम घर जाता हूँ ना दिल्ली, तो उनको होता है अच्छा फलाने फ्रेंड ने मिला, ढकाने ने मिला. सो आई स्टार्ट लाफिंग. कहती तो हंसता क्यों है? मैंने कहा मुझे हंसी आती कि हम ना एक डीपी बन के रह गए हैं लोगों के लिए. यू नो, पीपल वांट अ सेल्फी जस्ट टू बी ऑन द डीपी. या कि मनीष मेरा दोस्त है और मनीष के साथ मेरी फोटो है. मैंने कहा मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं है. मुझे प्रॉब्लम इस बात में कई बार होती है, पीपल डोंट इवन मीट यू एंड आस्क यू हाउ यू यार, यू गुड, ऑल गुड इन लाइफ, घर में सब ठीक है, आपकी सेहत ठीक है, आप बहुत भाग दौड़ करते हो, यू फाइन. तो मैंने कहा ये क्वेश्चन हमारी लाइफ से मिस होता जा रहा है. मैंने कहा खासकर आर्टिस्ट की लाइफ से. एब्सोल्युटली, एंड आई वांट टू स्टार्ट दैट क्वेश्चन. यू नो, आई वांट टू मीट माय फ्रेंड्स एंड आई वांट टू आस्क देम हाउ आर यू. फॉरगेट योर फिल्म, फॉरगेट योर टेलीविजन, फॉरगेट योर वर्क. बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत बुरा कर रहा है, जो भी, मुझे नहीं जानना, तू कैसा है. यू नो, एंड वो चीज़ मैंने पॉडकास्ट में स्टार्ट करी. एंड नाउ एक्टर्स आर कॉलिंग मी अप, भाई दिल खोलना है, कब आऊं. आई फील हैप्पी. आई रिमेंबर व्हेन आई सॉ द भारती वन, आई हैव टू कांग्रेचुलेट ऑन यू. दैट वाज, आई नेवर थॉट भारती, हम सबको हिंजेस पे उनकी स्टोरी पता थी, बट इतना डीपली उन्होंने, द स्ट्रगल्स आर समथिंग व्हिच आई हैव ऑलवेज सेड, कोई आपका ब्लड एंड स्वेट नहीं देखता. बहुत लंबी जर्नी होती है. बहुत लंबी जर्नी है. आई थिंक यू नो, कई बार क्या होता है यहाँ पे पॉडकास्ट में आके लोग जब अपना दिल खोलते हैं ना, दे फील बेटर अबाउट देमसेल्व्स. कि यार हम लोग इतनी मेहनत करके वहाँ से वहाँ तक पहुँच रहे हैं, इट्स ग्रेट. यू नो, एंड कई बार आप अपने बारे में जब बहुत बात करते हो ना, आपको अच्छा लगता है, यू स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट योरसेल्फ. देयर आर थिंग्स आप डेली लाइफ में नहीं बात कर सकते. यू नो, भारती की स्ट्रगल, उस दिन इनफैक्ट बहुत सी बातें मुझे पता चली एज अ फ्रेंड. भारती इज लाइक माय सिस्टर यार, मुझे नहीं पता थी. और इंसान अपने अंदर कितना कुछ रखता है, या कितना कुछ अंदर रहता है. तो मुझे लगता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि दिल खोलो यार, किसी के साथ भी खोलो. मैं हूं तो मेरे साथ खोलो यार. तो मुझे अच्छा लग रहा है, लोग कह रहे हैं यार
तेरा ना शो इज बिकमिंग लाइक अ थेरेपी, वी वांट टू कम एंड यू डॉक्यूमेंट इट, इट्स फाइन, वी वांट टू टॉक अबाउट इट, यू नो, सो इट्स आई फील ग्रेट एंड आई फील हैप्पी. Manish, lastly, आज I have been very overwhelmed because I have been very happy throughout the interview, so I have to ask you tricky question again, Manish. What makes Manish Paul sad? The man who for last 30 minutes have been nothing but just brought a smile on my face. Yeah. But what doesn't make Manish Paul happy? यार आई डोंट लाइक पीपल लाइंग, मुझे वहाँ दुख लगता है. यू नो, आई फील दैट ठीक है हम सब झूठ बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, ऐसा नहीं मैं दूध का धुला नहीं हूँ, मैं कोई भी भी झूठ नहीं है, बोलता हूँ. बट एक वो वाला झूठ होता है ना कि एक अच्छा मैं होता है, 10 चल मिनट में यार आया. ऐसा झूठ जो तेरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बट ऐसा झूठ जो किसी और को नुकसान पहुंचाए मुझे नहीं अच्छा लगता. मुझे नहीं अच्छा लगता व्हेन पीपल डोंट इनकरेज ईच अदर, आई डोंट लाइक इट. आई फील सबकी स्ट्रगल्स हैं, सबकी मेहनत है, कर दो यार हेल्प, किसी की क्या जाता है. मेरी है ना? मदर ये चीज कहती है कि तुम्हारा एक रेफरेंस देने से मतलब तुम्हें क्यों लगता है तुम्हारा काम नहीं होगा और उसका हो जाएगा. हाँ. उसकी किस्मत में लिखा है तो तुम्हारी रेफरेंस के बिना भी काम होगा. Absolutely. So that's what I say. Destiny plays a great part. तो बी गुड, बी ह्यूमन. मैं बार बार सबको बोलता हूँ, हम लोग कहीं ना कहीं वो मिस करते जा रहे हैं, छोड़ते आ रहे हैं. यू नो, बहुत भाग रहे हैं हम बातें बहुत करते हैं, लेकिन जो इतने हम लोग रोज व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग्स भेजते हैं ना विद दोस कोट्स, उसके अंदर 5% कोड भी हम लोग अप्लाई कर लेना, लाइफ बहुत कमाल की हो जाएगी. मेरी लाइफ का तो पता नहीं, लेकिन आज का इंटरव्यू बहुत कमाल का है क्योंकि मैं मनीष क्लोजिंग नोट पे बोलूंगी, मैं एक परसेप्शन के साथ आई थी. आई एम लाइक मैं मनीष से गुरप्रीत और जुग जुग की बात करूंगी, बट आई डोंट नो व्हेन आई डाइवर्टेड एंड इट कंप्लीटली वेंट टू अ कन्वर्सेशन बिकॉज आई रिमेंबर जब ट्रेलर आया था, जब मैं आपको आईफा में ब्रीफली मिली थी, बॉबी सर के साथ हम सबके साथ परफॉर्म करवा रहे थे, तब भी मुझे ये चीज़ आई वाज टेलिंग टू वन ऑफ माय को फ्रेंड्स आल्सो कि मुझे इतना एक अजीब खुशी मिली थी मनीष को देखकर कि दिस इट वाज लाइक अ सिंबोलिज्म ऑफ ऑल द जर्नीज people like us who come here, and then you get that bright moment in the sun which nobody can escape. So this comes from bottom of the heart and also makes me happier that you not just acknowledge it, but you just want to spread the sunshine to everyone. So from here on, I think by the time we'll meet next, we'll have more sunshines and more cheers with Manish, and never say never, as I say. ये happiness और ये smile तो हमेशा रहेगी. Absolutely यार, बस खुश रहो, मजे करो. मैं बार बार बड़ा फिल्मी हूँ, बट वही कहता हूँ ना, जियो मुस्कुराओ खुश रहो, क्या पता कल हो ना हो. बिलीव इन दैट. हम आएंगे कल, हम होंगे, कल होंगे, परसों भी और फिर से मिलेंगे और फिर से करेंगे. But thank you so much, Manish. Yeah. Thank you for opening up your heart and doing this. Thanks a lot. Thank you. Thanks for a wonderful interview. Thanks.